Good morning, student. Today we discuss about the some of the points regarding to the lesson number 4. So first we have to know that just in previous classes there may be studied as the structure of the DNA, deoxyribonucleic acid or deoxyribose nucleic acid. So DNA which can be play two type of the functions, one who called as the autocatalytic function and second one who called as the heterocatalytic function. So in the autocatalytic function of DNA we have to study in a detail as the DNA replication, or in autocatalytic function of an DNA now we have to discuss as to be the heterocatalytic function of DNA is the protein synthesis. So what is the DNA? We have to know that DNA is a double-stranded molecule which can be shown as to be in between the two strands as the basic nitrogenous base pairing like an ATCG. A, T paired with a double hydrogen bond and C paired with a G is the triple hydrogen bonds. Okay. Such a DNA which can be on such a strands, such a nitrogenous bases is in a number of the sequences is called as to be the one gene, and such a one gene is may be responsible for to have and some of the information in a genetic basis, or may be called the it is carrier of an genetic information. So it can be carried the information in a sequence of the genes. Genes which can be have a sequence of the number of the nitrogenous bases, and such genes which can be responsible to synthesize proteins, to synthesize some of the basic controlling events also. So there may be such a DNA which can be shown as in our body a basic function called as the heterocatalytic function, that is protein synthesis, because we have to know that our top to bottom body is only and only made by the various types of the proteins. That is, in our body there may be much more essential biomolecules is only and only the protein, as well as it is our body having showing is in the form of the structural components, या अदरवाइज हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है. ओके, ये हमारे शरीर का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है. ऑल्सो समटाइम्स इंटरनली इट मे बी modified itself into various types of the enzymes as well as the hormones which can be necessary for to regulate maintain the various types of the chemical reactions as well as the biomolecular reactions as well as the some of the life processes in our body. It means protein is basically much more essential important biomolecule for our body, but only and only protein is synthesized, or protein synthesis is controlled by only and only by the DNA. Okay, then we have to discuss as the protein synthesis, because in our syllabus there may be basic description is about given in a marking scheme. Sometimes 1 mark, 2 mark, 3 mark and 4 marks is the protein synthesis. So protein synthesis mainly involves only two processes, one who called the transcription and another one who called the translation. But such a so smallest word is not so simple processes. प्रोटीन सिंथेसिस दो प्रोसेस में कैरी होती है या दो इवेंट्स में खत्म होती है या की जाती है. तो पहली इवेंट या पहली प्रोसेस में होता है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा इवेंट होता है ट्रांसलेशन. ट्रांसक्रिप्शन में इस डीएनए पर जो भी जीन्स होती है या जिसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहा जाता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने आप में अपनी ही एक कॉपी बना लेती है, क्राइब करती है, ट्रांसक्राइब करती है. यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसी स्क्रिप्ट इस डीएनए के ऊपर एक खास जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बेस पर होती है जो फ्यूचर में किस तरह का प्रोटीन हमारे शरीर में नाउ नीड, अभी किस तरह का प्रोटीन जरूरी है और हाउ मच क्वांटिटी और कितनी क्वांटिटी में वो हमारे शरीर में इस समय में चाहिए, उसके अनुसार उस डीएनए पर जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस के अनुसार सबसे पहले वो सीक्वेंस की उन जीन्स की जो स्क्रिप्ट होती है उस रिस्पॉन्सिबल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए वो स्क्रिप्ट एक
ट्रांसलेट कर लेती है, या फिर हम बोलेंगे कि ट्रांसमिट कर लेती है, यानी कॉपी बनाती है। सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। उसी का नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसलेशन। जब तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो इस ट्रांसक्रिप्शन में जो एक स्क्रिप्ट बनाई जाती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की, जिन्हें हम आगे चल के नाम देंगे आरएनएस, उन आरएनएस की हेल्प की वजह से यही जो ट्रांसक्रिप्शन में खास तरह का स्क्रिप्ट इन आरएनएस में बनाया जाता है, एमआरएनए, उसके ऊपर की स्क्रिप्ट ट्रांसलेट की जाती है एक्चुअल सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, यानी प्रोटीन एक्चुअली अब फाइनली बना जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है। सो उसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। सो there may be one important basic point is that central जो dogma for protein synthesis, central dogma क्या है? central dogma, central का here mean has to be so much more important, महत्वपूर्ण। dogma क्राइटेरिया या अदरवाइज इट में बी द प्रक्रिया। ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। कौन सी? बेसिकली डीएनए मेन कंट्रोलर होता है, मेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर होता है, जो अपने आप में ट्रांसक्रिप्ट करेगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस करेगा, और इस ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्राइब करेगा, यानी अपनी ही एक कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की कॉपी, मल्टीपल कॉपी, जीरोक्स कॉपी बनाएगा। पर किस नाम से बनाएगा? नॉट डीएनए, यहाँ बनाएगा वो आरएनएस। यानी अब यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस हमारी समझ में ये आता है कि अगर रेप्लिकेशन करता है तो डीएनए अपनी जस्ट एग्जैक्ट मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए बनाता है, पर डीएनए अगर ट्रांसक्रिप्शन कराता है तो ट्रांसक्रिप्शन करता है तो मे बी डीएनए अपनी ही कॉम्प्लीमेंट्री कॉपीज बनाता है, पर डीएनए की जगह वो आरएनएस बनाता है। अब डीएनएस कैसे वो पहचानेंगे और आरएनएस कैसे पहचानेंगे? तो आरएनएस का एक बेसिक बेस पेयरिंग मैंने यहाँ दिया है कि हमेशा यहाँ टी की जगह, जैसे ए पेयर करता है टी की जगह, तो आरएनएस में हमेशा ए पेयर करेगा यू की जगह यूरासिल, और सी पेयर करेगा जी एज यूजुअल, जैसे होता है डीएनए में उसी तरीके से। बस ये एक बेसिक डिफरेंस है कि डीएनए का स्ट्रैंड कैसे पहचानेंगे, तो उसमें एडेनिन के साथ थाइमिन पेयर करेगा, और आरएनए कैसे पहचानेंगे, तो एडेनिन के साथ यूरासिल पेयर करेगा। ओके, सो डीएनए देन ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनएस बनाएगा, सिर्फ एक आरएनए नहीं कई सारे आरएनएस बनाएगा। लेकिन कभी कभी प्रोटीन सिंथेसिस में कई जगह पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ एमआरएनए लिखा जाता है, क्योंकि एमआरएनए मच मोर बेसिक इंपॉर्टेंस शोन करता है ना प्रोटीन सिंथेसिस में। इस वजह से ये बहुत नेसेसरी है, एमआरएनए के बिना यह प्रोटीन नहीं बनता। तो सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अगर कहला जाएगा तो यहाँ पर आरएनए की जगह एमआरएनए भी लिखना इसेंशियल होता है। ओके, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कि ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक आरएनए नहीं बनता, एमआरएनए नहीं बनता, तो आरएनएस बनाए जाते हैं जिसको एमआरएनएस, टीआरएनएस और आरआरएनएस कहा जाता है। ये इनकी प्ले बाय द फंक्शन, यानी ये आरएनएस किस तरह का फंक्शन प्ले करा है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि ये किस तरह का फंक्शन करता है, इस वजह से ये एमआरएनए कहलाता है। ये किस तरह का फंक्शन करता है, इस वजह से टीआरएनए कहलाता है। ये किस तरह का फंक्शन करता है, इस वजह से ये आरआरएनए कहलाता है। ओके, एक बार आरएनएस जब बन जाती है तो ये अपने आप में ट्रांसलेशन करता है, और ट्रांसलेशन में फाइनली यहाँ की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो स्पेसिफिकली एमआरएनएस में आ जाती है, और एमआरएनएस फिर अपने आप को ट्रांसलेट करता है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, तब जाके बनता है फाइनली प्रोटीन, या जिसे कहा जाता है पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी अमीनो एसिड की एक लॉन्ग चेन। जितनी नीड है, जितनी लंबाई में चाहिए, जितनी क्वांटिटी में चाहिए, वो डिपेंड करता है कि एमआरए कितना बड़ा बनाया जाए। ओके, देन थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट हम प्रोटीन सिंथेसिस को या ट्रांसक्रिप्शन को शुरुआत नहीं करेंगे। सो उसके अलावा भी थोड़ा सा ऐसा कि सपोज टू बी यूकैरियोटिक सेल है, तो जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस बनाया जा रहा है तो मे बी डोगमा यही रहेगा, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, देन यहाँ पर हम शो करेंगे ओनली एंड ओनली एज द एमआरएनए बनाया जाता है, देन ट्रांसलेशन होता है, देन प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ओके, देन प्रोकैरियोटिक सेल में भी वही होता है, सेम टू सेम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डीएनए, जहां पर डीएनए प्रेजेंट है जिन प्रोकैरियोटिक सेल में, जिन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं, तो डीएनए फिर से एज लाइक एज ट्रांसक्रिप्शन करेगा, एमआरएनए बनाएगा। बेसिकली टीआरएनए आरआरएनए भी बनाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए स्पेसिफाई करता है एमआरएनए।
एमआरएनए ट्रांसलेशन में जाएगा तो ट्रांसलेशन में वो प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर दो हिस्से हमने कहा है कि यहाँ तक जो है वो सिर्फ एमआरएनए बनाने का या आरएनएस बनाने का क्राइटेरिया है। अगर किसी सेल में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करना है और सपोज टू भी कुछ ऐसी फॉर एग्जाम्पल जिसे कुछ बैक्टोवायरस यानी बैक्टीरियल पर अटैक करने वाली जो बैक्टोवायरस होती है या कुछ ऐसी खास तरह की कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया या कुछ स्पेसिफिक वायरसेस है जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, तो उसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो डीएनए हमेशा इस प्रोसेस में किसे बनाएगा? आरएनएस को बनाएगा। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का मतलब यही आरएनएस फिर से साइमल्टेनियसली उल्टा ट्रांसक्रिप्शन करके अब किसे बनाएंगे? डीएनएस को बनाएंगे। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में आरएनएस को जन्म देता है तो आरएनएस उल्टा डीएनएस को जन्म देता है, तो उस समय में ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाया जाता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल में नहीं, तो स्पेसिफिकली ये स्पेसिफिक बैक्टोवायरस में पाया जाता है या कुछ ऐसी जो माइन्यूट बैक्टीरियाज है जिसे यूकैरिया वगैरह कहा जाता है, तो रेयरली ऐसा पाया जाता है, पर मोस्टली वायरस इसमें ये हमेशा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कैरी होता है। ओके, उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन में आरएनएस बनाया जाता है और ट्रांसलेशन में प्रोटीन बनाया जाता है। ओके, सो मे बी ऐसा बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन इज ओनली प्रोसेस देयर मे बी हैव टू प्रोड्यूस द आरएनएस एंड ट्रांसलेशन इज द ओनली प्रोसेस देयर मे बी सच अ आरएनएस व्हिच कैन बी हेल्प टू join the sequence of an amino acid in a long chain of polypeptide or maybe long chain of amino acid, then says that synthesis of an protein. We are known that DNA is always be present in only and only nucleus or nucleoplasm, not the cytoplasm. RNAs are present first or produced first in a nucleoplasm but escape from nucleoplasm into the cytoplasm in a cell. डीएनए हमेशा न्यूक्लियस या न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियोप्लाज्म में ही होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस में ही ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है और फिर आरएनएस बनाई जाती है। आरएनएस पहले बनाए जाते हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन धीरे से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो एक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल की छेद होती है न्यूक्लियर पोर, वहां से एस्केप होते भाग जाते हैं और साइटोप्लाज्म में घुस जाते हैं। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होता है, उस राइबोसोम में या उस राइबोसोम पर फिर ट्रांसलेशन किया जाता है इन हेल्प ऑफ 3 आरएनएस की वजह से और देन प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया जाता है। सो प्लेसमेंट क्या है ये हमें पता चली है कि डीएनए ट्रांसक्रिप्शन हमेशा न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म में करता है, क्योंकि डीएनए हमेशा न्यूक्लियस या न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। आरएनएस ट्रांसलेशन हमेशा साइटोप्लाज्म में करता है, प्रोड्यूस होता है पहले न्यूक्लियोप्लाज्म में, लेकिन ये एस्केप होते हैं, वहां से भाग जाते हैं, साइटोप्लाज्म में घुसते हैं। साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड बनती है, अमीनो एसिड को एक खास तरह की सीक्वेंस में जोड़ के अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ एन एमआरएनए पर जिस तरीके से जीन्स की सीक्वेंस होती है उनके अनुसार अमीनो एसिड जोड़ी जाती है और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है, देन प्रोटीन बनता है। ओके, और कुछ ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन फर्स्ट वी हैव टू स्टडी रिगार्डिंग टू प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस से कुछ मैं यहाँ बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमारे सिलेबस में नहीं दिया है, हमारे सिलेबस में डायरेक्ट प्रोटीन कैसे बनाया जाता है उसको लॉन्च किया है, पर यहाँ पर जब तक उसमें ये बेसिक इवेंट्स हमें नहीं पता या बेसिक चीज का नहीं पता, तो हम जब उसे पढ़ेंगे तो उस एक खास अंडरस्टैंडिंग के साथ, बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें समझ में नहीं आएगा। सो अब आरएनएस बनाया जाता है तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आरएनएस के। आरएनएस राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो स्पेसिफिकली बेस पेयरिंग AU या CG दिखाता है, यानी थाइमिन की जगह यूरासिल या बेस पेयरिंग एडेनिन के साथ ज्वाइन होता है। आरएनएस बेसिकली 2 टाइप्स के होते कहा जाता है, जेनेटिक आरएनएस होते हैं और नॉन जेनेटिक आरएनएस होते हैं। अब जेनेटिक आरएनएस किन्हें कहा जाता है? ऐसी वायरसेस, ऐसी स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो स्पेसिफिकली डीएनए को जेनेटिक मटेरियल करके कैरी नहीं करती, तो उस समय उसमें डीएनए बिल्कुल भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आरएनएस होता है। उस समय में कंट्रोलिंग यूनिट करके या जेनेटिक मटेरियल करके आरएनएस अपना रोल प्ले करता है, तो उस समय वो आरएनएस जेनेटिक आरएनएस हो जाती है।
दूसरा नॉन जेनेटिक आरएनएस, प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज द यूकैरियोटिक सेल, जहां पर डीएनएस अपना रोल जेनेटिक मटेरियल करके प्ले करता है, और डीएनएस के साथ जहां आरएनएस प्रेजेंट होती है, जो आरएनएस स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उस समय उन आरएनएस को नॉन जेनेटिक आरएनएस कहा जाता है। Non-genetic RNAs are of three types. One who called the messenger, specifies small m as a mRNA. Transfer, specify the small t as a tRNA. Ribosomal RNA specifies small r is the rRNA. Okay, here we have to study with the help of a structure, because such a structure, then in diagrammatic sketch we have to know that how to link amino acid and how to form a long chain of a polypeptide and protein molecule. So first mRNA, here is a figure is shown as the mRNA. mRNA काफी लंबा होता है, इन राइबोसोमल आरएनए या ट्रांसफर आरएनए की तुलना में काफी लंबा होता है, लेकिन यहाँ हमारे ब्लैक बोर्ड की अरेंजमेंट के हिसाब से मैंने यहाँ छोटा दिखाया है, या हमारी बुक की लेंथ के हिसाब से या विड्थ के हिसाब से भी हम छोटा दिखाते हैं, लेकिन जो मेन क्या है उस mRNA का बेसिक स्ट्रक्चर वो हमें नेसेसरी है। सो ये जो mRNA होता है, ये mRNA मैसेंजर करके डिनोट करता है स्मॉल m एज अ mRNA, because it may be says that the messages which can be carried is in the form of the genetic information, or may be called as to be the mRNA language or the cryptogram, which is necessary to responsible for the protein synthesis या showing the protein synthesis। ऐसी एक इंफॉर्मेशन लाता है, ऐसी एक मैसेज लाता है फ्रॉम द डीएनए, डीएनए से लाता है, डीएनए से ऐसा एक मैसेज लाता है जो मैसेज अपने आप में किस तरह का प्रोटीन बना है ये स्पेसिफाई करता है। ओके, सो इस मैसेज को यानी इस लेंथ ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस की लेंथ को या इन जीन्स को कंसिडरेशन करते हैं कि ये कुछ कंटेंट में जीन के स्वरूप में बढ़ जाती है, तो इन्हें स्ट्रक्चरल जीन्स कहा जाता है। ये स्ट्रक्चरल जीन्स अमीनो एसिड को तीन कोडॉन में एक कोडॉन एज अ 3 नाइट्रोजनस बेसिस का होता है, इस तरीके से कोडॉन में स्पेसिफाई करती है, और इन कोडॉन की वजह से ही किस तरह का अमीनो एसिड कब जोड़ा जाए और किस तरह का प्रोटीन बनाया जाए ये तय किया जाता है। ओके, so mRNA which can be have a long length or maybe short length according to how much quantity of an protein is synthesized or which type of the protein is synthesized, कितनी लंबाई में प्रोटीन बनाना है या कितनी क्वांटिटी में प्रोटीन बनाना है या कौन से टाइप का प्रोटीन बनाना, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि डीएनए कितनी लंबाई में mRNA बनाएगा। mRNA काफी लंबा होता है और नाइट्रोजनस बेसिस काफी होती है, इनके ऊपर कई सारी जीन्स होती है। ओके, सो यहाँ पर 5 प्राइम से शुरुआत करता है और ये 3 प्राइम होता है। 5 प्राइम जो होता है AUG या GUG इन 2 कोडॉन से स्पेसिफाई होता है। अब कोडॉन क्या चीज है, 1 2 3 एडेनाइन, यूरासिल एंड द ग्वानिन, इन 3 नाइट्रोजनस बेसिस का एक कोडॉन कहा जाता है। अब 3 नाइट्रोजनस बेसिस का एक यूनिट बनता है जिसे कोडॉन है, तो 3 है तो इसे ट्रिपलेट कोडॉन कहा जाता है। हमेशा जब भी mRNA शुरुआत करता है या शुरू होता है तो शुरू होते समय हमेशा AUG से ही शुरू होता है या GUG से ही शुरुआत होती है। AUG मिथानिन को स्पेसिफाई करता है, तो GUG ग्लाइसिन नाम की अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, या अदरवाइज हम ऐसा बोल सकते हैं कि AUG F मिथानिन नाम से भी कभी अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। सो ये हमेशा इस mRNA जब भी जिस किसी में प्रोकैरियोट सेल में हो या यूकैरियोटिक सेल में हो, जिस किसी में भी जब mRNA बनाया जाएगा तो हमेशा उस mRNA की शुरुआत AUG या GUG शुरुआत AUG या GUG इसी ट्रिपलेट कोडॉन से होगी। इस वजह से इसे सेंस कोडॉन, इनिशिएशन कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन कहा जाता है। यही कोडॉन अपने आप में एक तरह से यही कोडॉन्स अपने आप में स्पेसिफिकली प्रोटीन सिंथेसिस को शुरुआत करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को सेंस देगा। सो इस वजह से इसे सेंस, इनिशिएशन या स्टार्ट कोडॉन कहा जाएगा। उसी तरीके से
अब प्रोटीन बनाने की एक मर्यादा है, एक लिमिट है, बस वो कंटिन्यू 24 बनता ही चला जाएगा, बनता ही चला जाएगा, एमआरएनए खत्म ही नहीं होगा। ऐसे कैसे कितनी लेंथ में बनाना है, तो एक खास लेंथ में डीएनए एमआरएनए को बनाएगा, यानी कहीं पर तो इसका इस प्रोटीन सिंथेसिस का एंड भी है। तो एंड करने की, इस प्रोटीन की मॉलिक्यूल को एंड करने के लिए, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को एंड करने के लिए स्पेसिफिकली लास्ट वाले जो तीन नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, जिसे हमने कहा है कि तीन होते हैं, इस वजह से ट्रिपलेट कोडॉन कहेंगे। ये भी ट्रिपलेट कोडॉन में ही होता है, जो अपने आप में शायद एंड करेगा तो UAA नाम से करेगा, ये नाइट्रोजिनस बेसिस UAA सीक्वेंस में करेगा, तीन नाइट्रोजिनस सीक्वेंस में, जिसे ऑक्रे कहा जाएगा, या फिर UAG से करेगा एंड तो एम्बर कहा जाएगा, या UGA से करेगा तो ओपल कहा जाएगा। यानी एंड जो है इस mRNA का हमेशा UAA या अदरवाइज UGA या UAG इसी तरीके से करेगा, जिसे कहा जाता है ओक्रे, एम्बल, ओपल। 1 मार्क क्वेश्चन ऑफ द MCQ। जिसे अब इसकी अपोज में ये सेंस करेगा तो ये कोडॉन एंड कर रहा है तो नॉन सेंस, ये इनिशिएशन करेगा तो ये एंड करेगा, ये स्टार्ट करेगा तो ये स्टॉप करेगा। सो इसके अपोज में इसे नाम दिया जाता है। बीच वाले, दोनों के बीच वाले यानी सेंस कोडॉन और नॉन सेंस कोडॉन के बीच वाले जितने भी नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, ये भी इसी तरीके से 3-3 की यूनिट में बट जाएंगे, यानी 3-3 की ट्रिपलेट कोडॉन में बट जाएंगे। तो 3-3 की ट्रिपलेट कोडॉन में बट जाते हैं, और कहा जाता है कि कुछ खास ट्रिपलेट कोडॉन जो एक तरह का यूनिट बनाते हैं, यानी सपोज यहाँ पर 5-10 जो नाइट्रोजिनस बेसिस वाले ट्रिपलेट कोडॉन है वो एक जीन बनाएगा, या तीन ट्रिपलेट कोडॉन एक जीन बनाएगा, या 2 ट्रिपलेट कोडॉन दूसरा जीन, यानी कंसिडरेशन में यहाँ पर 2-4 जीन्स कंसिडरेशन में, या 2-4 जीन्स भी प्रेजेंट है, या फिर ऐसे कई सारे जीन्स होते हैं। हमने लिमिट की बेस पर इतना सा दिखाया, तो इनको स्ट्रक्चरल जीन्स कहा जाता है। यही बेसिक जीन्स 1 बाय 1 ऐसे पढ़ते चले जाएंगे, सीक्वेंस में कैरी होते चले जाएंगे, और एक एक अमीनो एसिड को जोड़ेंगे, यानी इस स्ट्रक्चरल जीन्स जिसे का नाम दिया गया। तो इन स्ट्रक्चरल जीन्स में से जो एक एक ट्रिपलेट कोडॉन है, ये एक एक ट्रिपलेट कोडॉन एक एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा, और एक एक अमीनो एसिड को जोड़ता चला जाएगा। जोड़ने की जो प्रक्रिया इसके पास नहीं है, ये सिर्फ उसको स्पेसिफाई करेगा कि अब अगर AUG है तो AUG ने F मिथानिन को या मिथानिन को जोड़ने के लिए अपना सीक्वेंस शोन किया है, तो उसके बाद अब किस अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा वो अगला ट्रिपलेट कोडॉन, फिर उसके बाद किस अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा तो उसके अगला ट्रिपलेट कोडॉन, इस तरीके से एक सीक्वेंस शोन करेगा, जिसे क्रिप्टोग्राम या mRNA लैंग्वेज कहा गया है। इट इज अबाउट द mRNA. mRNA is so important in a protein synthesis. Okay. Then दूसरा यहाँ पर tRNA. tRNA क्यों कहा जाता है, तो T फॉर द ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब क्या है, तो जैसे यहाँ पर AUG है तो ये ट्रिपलेट कोडॉन है, तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर फिर से 1 2 3 नाइट्रोजिनस बेसिस का ट्रिपलेट, पर यहाँ कोडॉन नहीं कहा जाएगा, यहाँ एंटी कोडॉन कहा जाएगा। ये एंटी कोडॉन इसकी अपोज में रोल प्ले करेगा। अगर ये ट्रिपलेट कोडॉन AUG नाइट्रोजिनस बेसिस को शोन करता है, तो वो ट्रिपलेट कोडॉन वो जो tRNA पर जो एंटी कोडॉन है, ये एंटी कोडॉन इसके अगेंस्ट में स्पेसिफाई करने वाले इस ट्रिपलेट कोडॉन के अगेंस्ट में ये एंटी कोडॉन ज्वाइन करेगा, और एक्चुअली मिथानिन या F मिथानिन को अपने साथ ले आएगा। कहाँ ले आएगा, तो यहाँ पर जहां पर एक्सेप्टर एंड दिखाया गया है, यहाँ जोड़ के वो ले आएगा। सॉरी, अब कैसे किया जाता है, कैसा होता है, वो पूरा क्राइटेरिया आगे पढ़ेंगे, पर फिलहाल यहाँ पर हम सिर्फ RNA के स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अब दूसरा tRNA किस तरह से होता है, तो यहाँ पर हमने 2 मॉडल tRNA के दिखाए। कुछ सेल्स में इस तरह का tRNA पाया जाता है, तो कुछ टाइप की सेल्स में इस तरह का tRNA पाया जाता है। इस तरह की tRNA जहां पर 1 2 3 लूप होते हैं, उसे क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ tRNA कहा जाता है, जो हॉगलैंड नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया है। और इस तरह से एक सीक्वेंस में कतार में लूप जोड़ते हुए 2 फ्री एंड के साथ अगर tRNA पाया जाता है, जो इमेजिनेशन इज द हेयर पिन, यानी हमारे बालों में जैसे हेयर पिन लगाते इमेजिनेशन है, उसकी तरह नजर आता है, जिसे हेयर पिन मॉडल ऑफ tRNA कहा जाता है, जो हॉली नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया है। ओके,
इस क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए में इस तरीके से एक एंड जो 5 प्राइम एंड होता है जो हमेशा ग्वानिन से ही अटैच होगा, 3 प्राइम एंड जो होगा इसका फ्री एंड जो ACC नाम की सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजनस बेसिस ट्रिपलेट कोडॉन में होगा, जो स्पेसिफिकली ये ACC जो एंड होगा यही उसके अनुसार, इस सीक्वेंस के अनुसार यहाँ पर अमीनो एसिड अटैच करके अपने साथ खींचते हुए लेके आएगा, यानी ट्रांसफर करेगा। कहाँ से? जहां अमीनो एसिड बना के रखे गए वहां से कहाँ तक? mRNA तक। सो एंड आफ्टर दैट इस तरीके से ये पहली जो लूप होती है जिसे DHU डाइहाइड्रोक्सी यूरासिल लूप कहा जाता है। दूसरा जो लूप होता है ये एंटीकोडॉन लूप कहा जाता है, क्योंकि इसकी बाहरी सतह पर एंटीकोडॉन होते हैं जो इस खास तरह की सीक्वेंस वाली जो mRNA पर होता है इसके इस ट्रिपलेट कोडॉन की अगेंस्ट में वर्क करता है। इस वजह से इसे एंटीकोडॉन और जे लूप होता है उसे एंटीकोडॉन लूप कहा जाता है। यहाँ पर अचानक से एक छोटी सी रिंग पाई जाती है, छोटी सी इनकी फोल्ड पाई जाती है इसी आरएनए की, जो अपने आप में ऐसी एक छोटी सी वेरिएबल टाइप ऑफ आर्म में बन जाती है, जिस वजह से इसे वेरिएबल आर्म नाम दिया जाता है। ये जो टीआरएनए होता है ये लंबा होता है, पर mRNA और आरआरएनए की लंबाई की तुलना में बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा माना जाता है। पर सबसे छोटा होने के बाद भी अपने आप को इस तरीके से एक तरह की खास ट्विस्टिंग शो करता है, कॉइलिंग शो करता है, जिसकी वजह से ऐसा उसका शेप एंड साइज बन जाता है, जिस वजह से इमेजिन किया क्लोवर लीफ समान नजर आता है, तो क्लोवर लीफ मॉडल। तीसरी जो लूप होती है जिसे T-Cy-C लूप कहा जाता है, थायमिन साई नाम की इंडिकेशन है और साइटोसिन, इसमें थायमिन साइटोसिन ज्यादा होते हैं, इस वजह से T-Cy-C लूप कहा जाता है। और बाद में इस तरीके से ये एक फ्री एंड, तो इस तरीके से 1 2 3 लूप में या इस तरह की सी पैरिंग, बीच बीच में पैरिंग और लूप फॉर्मेशन होती है जो फ्री लूप होती है, तो इसे क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ टीआरएनए कहा गया। उसी बेस पर बिल्कुल यहाँ पर हेयरपिन मॉडल, ये जो होता है जो बेसिक वाला जो सबसे नीचे उसकी लूप होती है जिसका बाहरी सतह पर एंटीकोडॉन होते हैं, तो उसे एंटीकोडॉन लूप कहा जाता है। यह एंटीकोडॉन अगेंस्ट वर्क करता है कोडॉन ऑन mRNA की। इस तरीके से बेस पेयरिंग जहां जहां लूप फॉर्मेशन होते हैं वहां बेस पेयरिंग होती है। दो फ्री बिल्कुल एज लाइक एज 5 प्राइम की तरफ लास्ट वाला नाइट्रोजन बेसिस ग्वानिन जी होता है, या 3 प्राइम की तरफ 3 प्राइम पर फ्री एंड वाले जो होते हैं वहां पर बाहरी सतह पर ACC नाम का नाइट्रोजनस बेसिस होता है, जो हमेशा ACC ही होगा और जिसे एक्सेप्टर एंडियासाइड कहा जाएगा। यहाँ पर ही एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड अपने साथ अटैच करके खींच के लाएगा, यानी ट्रांसफर करेगा फ्रॉम कहाँ से, where their amino acids are already be prepared or maybe stay for the waiting for the transfer और मे बी कैरिंग अप टू द mRNA तक लाने के लिए। तो ये दोनों आरएनए या ये जो आरएनए है ये सिर्फ ट्रांसफर करता है अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड जहां बनता है जिसे अमीनो एसिड पूल नाम दिया जाता है, उस अमीनो एसिड पूल से जहां mRNA प्रेजेंट है वहां तक। mRNA कहाँ होता है, तो mRNA स्पेसिफिकली राइबोसोम से अटैच हो जाता है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो आरएनए है ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है फ्रॉम अमीनो एसिड पूल टू द राइबोसोम ऑन अ सीक्वेंस ऑफ एन mRNA। सो इस वजह से इसका नाम पड़ा है ट्रांसफर आरएनए। एक लास्ट आरएनए, तीसरा आरएनए आरआरएनए, इसका कुछ खास रोल नहीं है, स्पेसिफिकली एक खास लेंथ में होता है। आरएनए की साइज पर डिपेंड करता है या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कितनी लंबाई में, और ये आरएनए मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, पर छोटी जगह में अपने आप में एक दूसरे के ऊपर खुद ब खुद ऐसे कॉइल कर लेता है, ट्विस्ट कर लेता है, जिस वजह से ऐसी लूपिंग आ जाती है। mRNA हमेशा स्ट्रेट होता है, कभी फोल्डिंग शो नहीं करता। यहाँ टीआरएनए इस तरीके से एक अजीबोगरीब फोल्डिंग शो करता है। इस मॉडल में अपने आप में ये लूप फॉर्मेशन की फोल्डिंग करता है, पर यहाँ पर यहाँ पर आरआरएनए एक अजीबोगरीब फोल्डिंग शो करता है जो इस तरीके से नजर आता है। और हमेशा ये साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स के साथ, राइबोसोम को स्टेबल रखने के लिए या राइबोसोम के साथ परमानेंटली अटैच हो जाता है, जो उसे स्टेबल रखे। mRNA को कहा किस तरीके से अटैच होना राइबोसोम से एक खास प्लेसमेंट देता है। सो इस वजह से इसका नाम आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए है। वही फ्री एंड 5 प्राइम है तो दूसरी 3 प्राइम है।
फ्री एंड वाले को सिंगल स्ट्रैंड कहा जाता है, और जो इस तरीके से अपने आप में फोल्ड करता है तो अचानक से ये फोल्डिंग लकीली अपने आप में पेयरिंग में बदल जाती है, जिस वजह से डबल स्ट्रैंड हो जाता है. So in this way we have to discuss as the just an initial basic information for the protein synthesis. Thank you.